Hello everyone. I hope you all are doing well. So let me start with our second topic, that is binomial distribution. Okay. We will try to cover all the important topics in this video as well as in the next part. So first of all, you can check out basically on my screen that there are some formulas. So what do you have to do? You have to write down these formulas in your notebook. These are the basic formulas of binomial distribution. There are 8 or 9 more formulas in binomial distribution, but as we are only covering the important topics, so we are not covering those formulas. Okay, we are just covering these 5 important formulas here. These are the, I think 90% of your syllabus will covered by this. Okay, so I hope you have taken the screenshot or you have written this part in your notebook. So let me start with the questions. I'm not telling you how we are calculating these formulas, how these formulas are made, because of shorter span. So we are just concentrating on the questions directly. Okay. So let me start with the question number 1 that I have in my book. That is example number 1. So let me read out the question first. A fair coin is tossed thrice. Fair coin is tossed thrice. You know what is the sample space? So ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं. आपने पहले भी मेथड किया था जिसमें 3 बार कॉइन को टोस्ट करते हैं तो सैम्पल स्पेस बनाते हैं, डायरेक्ट उसमें से करते हैं. तो आई वुड प्रेफर कि ये क्वेश्चन आप उसी मेथड से कीजिए, बट बिकॉज यहाँ पे मुझे बाइनोमियल समझाना है आपको, तो उसमें मैं ये मेथड आपको करा रही हूँ. प्रोबेबिलिटी में देयर आर सम क्वेश्चंस विच यू कैन डू बाय first method, the basic probability, or you can also use binomial distribution unless otherwise it is specified in the question. If it is specified that you have to use that particular formula, then you must have to use. Okay, as nothing is mentioned in the question, so if I have to do this question, I'll definitely go with the normal one. तो नॉर्मल में मैं क्या करूँगी, मैं थ्राइस का जो ये है ये सैम्पल स्पेस बनाऊँगी, दैट इज हेड 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 टेल, लाइक वो पूरे 8 केसेस. आफ्टर दैट जो जो क्वेश्चन में लिखा है मैं उसको सॉल्व करूँगी, आई विल गेट माई आंसर. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपके जो भी आंसर आएंगे वो सेम आएंगे. आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए प्रोबेबिलिटी का. ओके, लेट वी स्टार्ट विद द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज NCR. सो आई एम राइटिंग माई फॉर्मूला हियर, NCR Q power n minus R. Okay, somewhere in your book you can also check out there is X, right? They have written X here. So choice is yours. You can also write down X. Both are same. Okay. P power R. So this is my formula. NCR Q power n minus R P power R. Understood or not? So for this we have to write down X equals to small r. I'm writing small r. You can also write small x. Choice is yours. As in your book it is written that we have to use small r, small x, I think so, right? So what is P here, what is Q here, and what is N? For example, if I toss a coin twice, then how many times I tossed the coin is called N. So what is my N here? 2. And in the given question which I showed you, in that question what was my answer? N is 3, right? Because we tossed the coin thrice, so the N is 3. So N 3 हो गया. P कितना होता है? P होता है सक्सेस. क्या निकालना है आपने क्वेश्चन में? उसमें हमने निकालना था हेड आने की प्रोबेबिलिटी. दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ बाइनोमियल. दोज हैव द सेम बुक, कैन चेक आउट इन द बुक. दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको. हेड क्या हो गया मेरा? सक्सेस. सक्सेस मतलब P को क्या बोलते हैं? सक्सेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं P कैलकुलेट करूँगी. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सक्सेस. ठीक है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी? हाफ. क्यों? क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चे? हाफ. फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Q मतलब फेलियर. ठीक है, Q मतलब फेलियर. फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो. ठीक है, 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो ऊपर वाले की, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. वो तो मुझे भी दिख रहा है कि हाफ हाफ है, बट पॉइंट इज दिस कि किसी क्वेश्चन में हाफ ना हुआ तो ठीक है. सो यू मस्ट नो कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसलिए मैंने ये लिखा है. ओके, वो तो देख के ही पता चल रहा था मैं हाफ है. सो P पता चल गया हमें सक्सेस. फेलियर हमें पता चल गया. N कितना होता है? कितने टाइम्स आ रहा है क्वेश्चन में, कितनी बार आपने उसको, जैसे डाई को फेंका है तो कितनी बार फेंका है, लाइक दैट. तो उससे आते हैं हमारे N. तो यहाँ पे हमने 3 बार टोस्ट किया था कॉइन को, तो हमारा N आ गया 3. अंडरस्टूड और नॉट?
सो हमें 3 चीज़ें मिली, यही 3 चीज़ें हमें चाहिए थी। ये 3 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं बेटा, इसके बिना क्वेश्चन शुरू नहीं हो सकता। अब हमारे पास जो दूसरी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ आर, जिसको आप स्मॉल एक्स भी बोल सकते हो। ये क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स में गिवन होगी, जैसे 1 पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो जो भी चीज़ें ये गिवन होंगी ना आपकी, ये आपकी आर की वैल्यू गिवन होगी। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, एग्जैक्टली 2 हेड। तो उसने बोला एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए, यानी आर की वैल्यू कितनी दी है, 2। सो लेट वी स्टार्ट विद द पॉइंट। हमारा फॉर्मूला था ये वाला बच्चे, जो ये ऊपर लिखा हुआ है, यही सेम फॉर्मूला आपने फॉलो करना है एज इट इज़। सो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। सो मेरे को क्या निकालना है, जस्ट गिव मी 1 सेक। या मेरे को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 निकालना है मुझे। आई हैव टू स्टार्ट विद दिस पार्ट, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। देन NCR, n मतलब 3C2, राइट। Q की प्रोबेबिलिटी, Q हमारा 1/2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगा, क्या था वहाँ पे ऊपर चेक कीजिए, n-r, n-r। तो n कितना है हमारा, 3, 2, तो 3 - 2, अंडरस्टूड और नॉट, 3 - 2 दैट इज n-r। ओके, p हमारा क्या है अगला, हाफ। p की वैल्यू क्या थी, r मतलब ये वाली वैल्यू है एज इट इज। सो दिस वन आपने पिछली वीडियोस देख ही ली होंगी, उसमें से आपने कॉम्बिनेशन वाली वीडियो भी वॉच कर ली होगी। सो उसमें हमने इसको सॉल्व करना सिखाया था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप वहाँ पे वीडियो में चेक कर लेना ये कैसे निकलता है। ओके, सो 3 × 1/2 की पावर 3 - 2 1 हो गया यहाँ पे। सो कैन आई राइट 1/2, और स्क्वायर है तो इट मीन्स इसको 2 बार टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे या बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, व्हाट्सएवर। आंसर इज 3/8। सो दिस इज योर आंसर। याद रखिएगा, चाहे आप इस मेथड से कर रहे हैं चाहे बेसिक मेथड से कर रहे हैं जो हमने पहले किया था, आंसर सेम आएगा। देयर इज नो चेंज इन आंसर, राइट, बिकॉज वी आर जस्ट चेंजिंग द वे टू राइट ऑन द क्वेश्चन और टू सॉल्व द क्वेश्चन, नॉट द आंसर। सो दैट इज़ द पॉइंट। बट अगर यहीं पे जहाँ पे है ना भाई हमारा 3 है, राइट, यहाँ पे 300 होता, देन वो सिंपल वाले मेथड से ना यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So in that case, what you have to do, you have to follow this method. That's why they introduced this type of binomial theorem, right? अगर किसी ने +1 में मैथ्स लिया होगा तो उसको पता होगा बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है. प्रोबेबिलिटी में बर्नौली ट्रायल्स होते हैं, +1 में भी +2 में भी, दोनों में था. +1 में भी बाइनोमियल थ्योरम की होगी आपने, एंड +2 में बर्नौली ट्रायल्स. तो बर्नौली ट्रायल्स जो होते हैं बेसिकली वो किस लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे कि जब ये वाली काउंटिंग ना बहुत ज़्यादा हो जाए, 30 हो जाए तब भी हमसे काउंट नहीं होंगे, 3300 ऐसे हो गए फिर तो बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगे. तो उस केसेस में ये किया जाता है. जब काउंटेबल है 10 होंगे तब भी हमसे काउंट नहीं होंगे. 10 टाइम कॉइन को कैसे टोस करोगे, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी, कैसे टोस करोगे, कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, दिमाग की दही हो जाएगी तुम्हारे, हाँ जितना भी है उसकी, ठीक है. चलो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है. ये तो नॉर्मल था, x = ये दिया था आपको. सेकंड में लिखा है एटलीस्ट 2 हेड. ओके, लेट मी स्टार्ट विद दिस वन. एटलीस्ट 2 हेड्स, या एटलीस्ट 2 हेड बोले तो कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए. कितने हेड होंगे, और जितना n होगा आपका मैक्सिमम n तक जाएंगे हम लोग, 2 से लेके मैक्सिमम n तक जाएंगे. 3 ही है ना, तो मतलब r की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, 2 भी हो सकती है और r की वैल्यू 3 भी हो सकती है. अंडरस्टूड और नॉट. r की वैल्यू 2 भी हो सकती है, r की वैल्यू 3 भी हो सकती है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. r की वैल्यू 2 भी हो सकती है, r की वैल्यू 3 भी हो सकती है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को 2 का भी निकालना पड़ेगा उनका आंसर, और मेरे को 3 का भी निकालना पड़ेगा, और दोनों के आंसर को मैं ऐड कर लूँगी. कईयों का दिमाग चल रहा होगा वो 2 का तो ऊपर निकाल लिया है, बिल्कुल निकाल लिया है, बट फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना पेपर में कि ये है, बाकी आंसर हम चेप देंगे ऊपर से एज इट इज़. पेपर में इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो खुद ही आपकी हेल्प कर रहे होते हैं कि जो अगले पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ यूज़ हो जाए, उससे अगले पार्ट में दोनों चीज़ें यूज़ हो जाएँ ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है. तो उसके लिए आपकी बुद्धि होनी चाहिए कि हाँ मेरे को ये कैसे अप्लाई करना है. ओके, बिना बुद्धि के तो वैसे भी नहीं चलेगा बच्चे. चलो लेट वी स्टार्ट विद द 2 का तो सेम टू सेम यही चेप देते हैं ऊपर से फॉर्मूला, राइट. सो 3C2. वन मोर थिंग, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले ऊपर फॉर्मूले लिखे थे, पॉज करके वीडियो को पहले फॉर्मूला रट्टा मार लो, सीधी सी बात, ठीक है. फॉर्मूला एक बार रट्टा लग गया, उसके बाद जितने क्वेश्चन होंगे अपने आप सॉल्व करो, साथ में अपने आप सॉल्व करोगे, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं. अगर ये होगा बाद में याद कर लेंगे, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नहीं आने वाला है. ओके, बाद में बाद आती ही नहीं है.
तो प्लीज़ पॉज करके पहले फॉर्मूले याद कर लेना, उसके बाद खुद साथ में सॉल्व करो, राइट? देन यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस। ओके, आई एम राइटिंग Q 3 माइनस 2, दैट इज इन दोनों को माइनस करते हैं, देन P की पावर R, दैट इज दिस वन। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू, लाइक आप अकेले बैठे पढ़ रहे हो, अभी वॉच कर रहे हो वीडियो, तो उस टाइम पे जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे साथ बोलो। अगर आप बोलोगे तो आपका फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएगा बार बार बोल के। ओके, प्लस ये तो 2 वाला था बच्चे, अब 3 वाला करते हैं। NCR, क्योंकि R भी इसमें 3 है और N भी 3 था तो ऐसा आएगा Q की पावर N माइनस R, यानी 3 माइनस 3, देन P की पावर R। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ फर्स्ट पार्ट का तो आंसर मैं ऊपर से ही चेप रही हूँ, सारा यही तो किया था ऊपर हमने, 3/8 आ गया सीधा। इधर वाले में 3C3 को कैसे सॉल्व करना है आप देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए 3C3 को कैसे सॉल्व करना है देख लेना। अदरवाइज मैं एक शॉर्टकट बता देती हूँ आपको, यहीं पे लिख देती हूँ। 3C 0 होता है, मतलब यहाँ पे 0 हो नीचे वाले पोर्शन में, या सेम वैल्यू हो लाइक दिस। ओके, या सेम वैल्यू हो या ये हो, दोनों में से कुछ भी आंसर 1 आता है। ठीक है, ये रट्टा मार लेना, छोटा सा पॉइंट है। 3C 0, 3C 3, तो 1 आ गया आंसर। तो 3C 3 बन रहा है अपना, 1 आएगा आंसर। ओके, 1/2, 3 माइनस 3 0 बनेगा, 1/2 की पावर 0, समथिंग पावर 0 1 होता है। ठीक है, ये भी याद कर लेना साथ में। जैसे 2 है, 2 की पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। किसी की भी पावर ना अगर 0 आ जाती है तो आंसर 1 होता है। अंडरस्टूड? सो इस वाले पार्ट में हमारा आंसर 1/2 की पावर 0 बनेगा, मतलब 1 बनेगा, इंटू 1/2 की क्यूब। आई होप आपको पता होगा 1/2 की क्यूब क्या होता है, राइट? दैट इज 1/8। So 3/8 plus 1/8. So my answer is 4/8. 1/2 is my answer. अब ये मत पूछना कि 4/8 को कैसे आया 1/2, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। एटमोस्ट 2 हेड्स। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये ध्यान से याद रखना। यहाँ बच्चे एक गलती करते हैं, एटमोस्ट 2 हेड्स, राइट? एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो 2 हेड अगर हो गए तो 2 से कम तो ले सकते हैं ना, कम में क्या जाएगा? 1 हेड। 0 हेड भी इसमें आता है, ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे ये ले लेते हैं ऊपर वाले 2, ये भूल जाते हैं 0 हेड। तो एटमोस्ट में 0 भी आता है, एटमोस्ट में दिख रहा है ना, ओ मतलब 0, ठीक है? तो 0 भी आएगा एटमोस्ट में, याद कर लो, ऐसे रट्टा मार लो, ठीक है? एटमोस्ट में O भी आएगा, यानी 0 भी आएगा। तो इन तीनों का आंसर आपने ऐड करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, सॉरी 0 लिख लेती हूँ पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। जो न्यू है मैथ्स के लिए, आई वुड प्रेफर कि आप ऐसे सॉल्व कीजिए, पहला पार्ट सॉल्व कीजिए, दूसरा कीजिए, तीसरा कीजिए, आंसर निकालिए, अलग अलग ऐड कर लीजिए। बिकॉज बच्चे ये क्वेश्चन माइट भी 5 का भी आ सकता है, 15 का भी आ सकता है, कुछ नहीं पता यूनिवर्सिटी का। तो अगर ये क्वेश्चन 15 का आता है तो क्यों दिमाग की दही करनी है ना? सीधा ही क्वेश्चन में वैल्यू डालो, आंसर बार। अगर जिसको ये चीज़ें पहले से आती हैं तो दूसरा एक शॉर्टकट होता है इसका, वो क्या होता है, क्योंकि जो हमारा n होता है, जैसे n इक्वल्स टू 3 है, तो हमारे 3 तक के आंसर ऐड करके 1 आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। n3 का मतलब क्या है? 0 1 2 3, यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या आएगा? 1 आएगा। n3 होने का मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आएगा। मतलब आई कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक दिस, x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3, इन सब का टोटल क्या होगा? 1। ये होता है, बताया था ना आपको, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है? 1। तो इन सब का टोटल 1 होएगा। अब मुझे किसका आंसर निकालना है? मुझे इसका आंसर निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो कॉमन सेंस बचा क्या? ये वाला, इसको उधर शिफ्ट कर दो। तो 1 में से अगर इस वाली चीज़ को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेंगे? ये तीनों आंसर। सो वी कैन ऑल्सो राइट x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3। सो 1 में से जो ये आंसर आएगा x इक्वल्स टू 3 प्रोबेबिलिटी का, उनको माइनस कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। ओके, आई होप मेरे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करवाना होगा तो फिर बता देना मेरे को, ठीक है?
आई सेंड यू द पिक्स एंड प्लीज़ मेरे को मेल करना, मेरी मेल आईडी चेक कर लेना आप लोग, मेल कर देना मेरे को। अगर किसी को कोई पर्सनल क्वेश्चन में डाउट है तो मेल कर देना मेरे को, मैं उसका रिप्लाई करके आंसर करके डन आपको मेल में ही रिवर्ट बैक कर दूँगी। ओके चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर एग्जाम्पल नंबर 2. Let's check out this one. Suppose that a technical university has to form a committee of 5 member. Okay, उनको 5 member की कमेटी बनानी है, यानी हमें 5 बंदे चाहिए, तो n equals to 5. जितनी कमेटी के मेंबर्स होते हैं, जितने लोग आपको चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, वो n होता है, तो n equals to 5. फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 20 कैंडिडेट, टोटल 20 कैंडिडेट हैं, जिनमें से 12 टीचर हैं, 8 स्टूडेंट हैं। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज़ आया हुआ 2 बार। ठीक है, चलो लेट वी स्टार्ट विद दिस वन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 1 सेक। या क्वेश्चन कह रहा है टोटल 20 लोग हैं। ये अच्छे से देखना बेटा प्लीज़, क्वेश्चन अच्छे से 1 या 2 बार इसको करके भी देख लेना, ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए 20 स्टूडेंट कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से 2 पार्टीशन है, 12 टीचर्स हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, पीयू के क्वेश्चन ना एज इट इज़ आते हैं, एज इट इज़। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना, जब भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए। स्टूडेंट्स, ओके 12 टीचर्स हैं, 8 स्टूडेंट हैं। टीचर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 12/20 है ना। स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 8/20। तो पहले हम निकाल लेते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको गाथा लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ स्टूडेंट। ठीक है, फिर आगे आपने PS डालना है, फिर आगे आंसर लिखना है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ टीचर पूरा लिखना है, फिर PT डालना है, फिर सेलेक्ट करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ स्टूडेंट इज़ 8/20। यहाँ से दिख ही रहा होगा आपको, कैंसिल कर लो इसको, 2/5 आ जाएगा, 4 के टेबल से कैंसिल किया मैंने, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ टीचर और सेलेक्टिंग अ टीचर इज़ 12/20, राइट। दैट इज़ माय 4 से करें तो 3/5 है ना। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मेजॉरिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स आर स्टूडेंट्स। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी। 5 यहाँ लिखते हैं, 5 मेंबर होने चाहिए कमेटी के, है ना। उसने बोला मेजॉरिटी स्टूडेंट होनी चाहिए। मेजॉरिटी क्या होती है 5 में से, आधे से ज़्यादा, मोर देन 50%, दैट इज़ कॉल्ड मेजॉरिटी, है ना। अब आधा तो मेंबर ले नहीं सकते ना, 2.5 मेंबर कैसे लेंगे। ठीक है, तो कितनी होगी मेजॉरिटी, 3 से शुरू होगी। अगर 3 स्टूडेंट हो जाए तो भी मेजॉरिटी है, 4 स्टूडेंट हो जाए तो भी मेजॉरिटी है, 5 वाला तो मेजॉरिटी क्या हो, तो फुल ही हो गया, बट वो है तो मेजॉरिटी ना। सो वहाँ पे वर्डिंग है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, स्टूडेंट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। 3 स्टूडेंट होंगे तब भी मेजॉरिटी होगी, 4 होंगे तब भी, 5 होंगे तब भी। और जो इस तरह से ऑप्शन दी होती है ये हमेशा आपका क्या होता है बच्चे, R। और क्योंकि यहाँ पे उसने स्टूडेंट होने की बात की है, तो इसका मतलब स्टूडेंट वाली प्रोबेबिलिटी को आपको क्या लेना है, सक्सेस। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में बताया हुआ उसने, उसका आंसर स्टूडेंट्स का पूछा है, तो स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी आपके लिए सक्सेस हो जाएगी। अगर यहाँ टीचर का बोलता वो कि टीचर कम से कम एटलीस्ट मेजॉरिटी टीचर्स होने चाहिए, तो टीचर के केस में ये वाले ऑप्शन R होते हैं। ऑप्शंस तो R ही होंगे हमेशा, लेकिन जो टीचर की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी सक्सेस हो जाती है। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हैं तो मेरी प्रोबेबिलिटी ये वाली सक्सेस की होगी, सो दैट इज़ माई स्मॉल p। अंडरस्टूड। और जो दूसरे वाला है वो मेरा फेलियर हो जाएगा, तो चाहे तो 1 में से इसको भी माइनस कर लेते, आप सीधा यही आना था आपका, बट मैंने अलग अलग निकाल दिया, चॉइस इज योर्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी ये होगी, फेलियर ये होगी। अब आपका आंसर निकालना है, 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं आपने, तो n = 5 आपका, R = 3, 4, 5 तीनों वैल्यूज लेके सॉल्व करना है। आई एम राइटिंग द परफॉर्मा, हाउ यू हैव टू स्टार्ट। ठीक है, x = 3, x = 4 एंड x = 5। बस इसको सॉल्व करना है, वैल्यू डालनी है। ठीक है जी, आई होप नाउ यू कैन डू। वही सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना है, मैं एक बार परफॉर्मा लिख देती हूँ इफ़ यू वांट, और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके जी, सो आई एम राइटिंग 3 के लिए अगर मैं कर रही हूँ तो मेरा n तो सेम रहेगा, 5c3, q मेरा कितना है 3/5, q की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 5 - 3 दैट इज 2, p की पावर r दैट इज 3, प्लस 5c4 नेक्स्ट 3/5 q था हमारा, इसकी पावर 5 - 4 दैट इज 1, एंड जो नेक्स्ट हमारा है p 2/5 उसकी पावर 4।
अंडरस्टूड. देन द लास्ट पार्ट 5c5 q की पावर 5 माइनस 5 दैट इज 0, समथिंग पावर 0 1 होता है, 2/5 की पावर 5. अंडरस्टूड. सो यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस पार्ट एंड यू विल गेट योर आंसर. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दैट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेपिटेटिव आते रहते हैं एग्जाम्स में. सो दीज आर द वन ऑफ important question. Okay, let me start with the third one. Example number 3. 8 coins are thrown. Oh my goodness, 8 कॉइन इकट्ठे थ्रो करोगे, सैम्पल स्पेस तो बन नहीं सकती है ना. तो ऑब्वियसली बात है अपना क्या है, n, राइट. तो क्वेश्चन में ये पहचानना जरूरी है बाइनोमियल के क्वेश्चन. क्वेश्चन एक लाइन का होगा जैसे क्वेश्चन है और दर्जे उड़ा के रख देता है बच्चों के, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग what the question is asking exactly. So that is very important. If you are not getting the question by just giving a simple reading, try to read out the question twice, thrice or even more than that. अभी बहुत सारे बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन किए हमारे अकाउंट्स के पेपर में कि बहुत इजी क्वेश्चन थे, पढ़े नहीं ढंग से, ध्यान से देखा नहीं, इसीलिए छोड़ आए एग्जाम में, बेसिकली अटैम्प्ट ही नहीं किया. कहते इतने डेंजर आए थे दीदी क्वेश्चन, लाइक दैट. सो इट्स नॉट लाइक दैट द थिंग. ठीक है, एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था. तब मुझे रियलाइज़ हुआ है धीरे धीरे, और टीचर्स ने भी बताया कि जब आपको ना समझ में आए ना, क्वेश्चन को 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो. ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन कुछ ना बताए, क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हिंट निकलते ही निकलते हैं. अब पहला ही क्वेश्चन पढ़ा जब मैंने, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं किस मेथड से करूँ. मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, जैसे आप एग्जाम में पढ़ोगे ना, तो आपने पढ़ा तो आपको समझ नहीं आ रहा कौन से मेथड से करूँ. फिर आप ये देखो क्या ये नॉर्मल से हो सकता है पॉसिबल, क्या हम इसकी सैम्पल स्पेस ड्रॉ कर सकते हैं. जस्ट थिंक अबाउट दिस. 8 कॉइन्स टोस किए हैं, 8 कॉइन की सैम्पल स्पेस बना सकते हो. मैक्सिमम 4 की बन सकती है सैम्पल स्पेस, जिसमें 16 आते हैं, राइट. मैक्सिमम जब 4 बार कॉइन को टोस किया जाता है तो सैम्पल स्पेस बन सकती है, उससे ज़्यादा की आप नहीं बना सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है. तो उस केस में हम किस पे जाएंगे, बाइनोमियल पे. और बाइनोमियल में फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r n इक्वल्स टू एन सी आर क्यू की पावर n माइनस आर p की पावर r. अंडरस्टूड और नॉट. ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग पावर इट मीन्स पावर. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. 8 कॉइन्स टोस किए हैं आपने. 8 कॉइन बोले तो n इक्वल्स टू 8. सो राइट डाउन इन योर नोटबुक n इक्वल्स टू 8. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट. अब ये जो एट लीस्ट, एट मोस्ट, एग्जैक्टली, ये क्या होता है, r. ठीक है ना, ये क्या होता है आपका r. क्या क्या वर्ड बोले मैंने, एग्जैक्टली, एट मोस्ट, एट लीस्ट. अब कॉमन सेंस लगाना थोड़ी सी. जिस भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली, एट लीस्ट, एट मोस्ट आ गया, उस क्वेश्चन में बाइनोमियल लग सकता है. अंडरस्टूड दिस पॉइंट, लग सकता है. आई हैवंट सेड सो कि लगेगा ही लगेगा. वाई, बिकॉज कई जगह सिंपल तरीके से भी काम हो सकता है, तो सिंपल से कर लो. बाइनोमियल से कंफर्टेबल हो तो बाइनोमियल से. बस ये ध्यान में रखना हिंट से कि इन चीज़ों से हमें पता चलता है बाइनोमियल लगेगा ही लगेगा. ओके, एटलीस्ट का मतलब क्या है, आर दिया है आपको. ठीक है, एन अपना 8 हो गया था, आर अपना एटलीस्ट 6 हो गया. कम से कम 6 तो 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट आपको पता है ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, एन तक. एन से ज़्यादा आप कभी भी नहीं जा सकते. ओके, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो आप, एन तक जा सकते हो. तो 6, 7, 8, बस इतना जाएंगे हम. ओके, अब हमें और क्या चाहिए, एन मिल गया अपने को, आर मिल गया अपने को, पी और क्यू रह गया हमारा. तो पी निकाल लेंगे, क्यू तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना 1 में से माइनस करके. तो पी देखो क्या लिखा है आगे, हेड. ठीक है ना. चलो लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अब मैं सारा डेटा लिखती हूँ जो आपने लिखा हुआ है अपनी नोटबुक में. एन इक्वल्स टू 8, आर इक्वल्स टू एटलीस्ट 6. एटलीस्ट 6 बोले तो 6, 7, 8. बस ये लिख लेना अपने समझने के लिए. और एग्जाम में भी एज इट इज़ नोट कर सकते हो आप, कोई गलत नहीं करेगा इसको. अब सक्सेस किसको लेना, हमने क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा था चेक करो, हेड लिखा था ना, वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन था हेड. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी नॉर्मली कितनी होती है बेटा, हमने 8 का नहीं निकालना है, हमने नॉर्मली सोचना है. बिल्कुल नॉर्मली कैसे आता था, पर आप कहोगे क्वेश्चन में तो 8 का पूछा है, तो करेंगे ना उसके लिए बाइनोमियल. तो बाइनोमियल किसके लिए लगा रहे हैं फिर, 8 का निकालने के लिए. लेकिन P और Q हमें सिंगल का ही चाहिए. तो जब मैं एक बार कॉइन को टोस्ट करती हूँ तो हेड आता है या टेल आता है, 2 चीज़ें आती है ना, हेड और टेल. तो एक बार में टोस्ट करने में सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, सक्सेस होने की 1/2. अगर किसी को नहीं समझ में आया जल्दी से देख लो बेटा. हेड और टेल हमारी सैम्पल स्पेस होती है जब हम एक बार टोस्ट करते हैं. तो इसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन टोटल कितने हैं, 2 इवेंट है. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 1/2. अंडरस्टूड और नॉट. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा. ओके,
चलो क्यू कैसे निकलेगा, 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, यू विल गेट योर क्यू। सब कुछ मिल गया अपने को। चलो वैल्यू डालते हैं फटाफट से। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू क्या चाहिए आपको आंसर में, ये चाहिए 6 चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 चाहिए अपने को, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8 चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, अगले क्वेश्चंस में मैंने ओपन नहीं करना है, राइट, बिकॉज मैं एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगी यहाँ पे, आपको पता ही है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसको सॉल्व कर लेना पूरा, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। ओके, आई एम जस्ट ब्रीफिंग दिस पार्ट। ओके, सो एन क्या था हमारा यहाँ पे 8, सी 6, क्यू की पार, व्हाट इज माई क्यू, हाफ, 8 - 6 दैट इज 2, सक्सेस पी की पार 6। ओके, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आप भी साथ में लिखिए और खुद बोलिए कि इसमें ये लगता है, ये लगता है, आपको याद हो जाएगा इजीली। 8 C 7, ठीक है, Q की पार 8 - 7 दैट इज 1, P की पार R यानी कि 7, प्लस 8 C 8, Q की पार 8 - 8 0, P की पार 8। अंडरस्टूड और नॉट? आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। या चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन जो अगला करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा एज इट इज़ आने के चांसेस हैं इसके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट इसलिए पेपर में रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अभी तो मैंने कल क्वेश्चन चेक कर रही थी जब मैं आपके वो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी के कि कौन कौन से फर्स्ट में जाएंगे, 2 बार तो क्वेश्चन उसमें आ लिए वाला इस टाइप का। सो ये ध्यान से देखना है, इसको अच्छे से समझ लो, समझ में आए वेल एंड गुड है, नहीं आए तो देख लो तुम जो करना है, ठीक है, समझ आ ही गया होगा। चलो एग्जाम्पल 4 दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो इस पर 6 एज इट इज़ आएगा पेपर में अगर आया तो 5 का, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉम्ब हिटिंग अ टारगेट इज 1/5। बॉम्ब के हिट करने की टारगेट को प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5। सक्सेस, सीधी सी बात, ठीक है, सक्सेस। 2 बॉम्ब्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज। अच्छा, अगर एक ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है तो 2 बॉम्ब चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय पे डिपेंड करता है, 2 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसा अभी हमने पीछे क्वेश्चन नहीं किया था मेजॉरिटी वाला, है ना। मेजॉरिटी कितनी होगी, 3 होगी मेजॉरिटी, 3 के बाद 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो 3 4 5 3 ऑप्शन आई थी हमारी। सिमिलरली इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू कि 2 बॉम्ब्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कहाँ तक जाएंगे ज़्यादा, जहाँ तक एंड जाएगा हमारा। ओके, लेट मी स्टार्ट। कहता बॉम्ब के हिट करने की टारगेट को प्रोबेबिलिटी 1/5 है, दैट इज माई सक्सेस। 2 बॉम्ब्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज। 2 बॉम्ब मिनिमम चाहिए ही चाहिए, मिनिमम बोले तो एटलीस्ट कम से कम 2 चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इफ 6 बॉम्ब्स आर फायर्ड एट द ब्रिज, ओके 6 बॉम्ब फेंके हमने, एन कितना हो गया 6 फेंके हैं, जिनमें से मिनिमम 2 आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, तो हमें एन मिल गया 6 और आर हमारा क्या हो गया पीछे, 2 तो चाहिए 2 से ज़्यादा भी हो सकता है ना, फिर तो 2 तो मिनिमम है, तो मैक्सिमम तो 6 तक जाएंगे, तो ऑप्शन क्या बनेगी 2 3 4 5 6। अंडरस्टूड और नॉट, ये ऑप्शंस बनेंगे आपके। 6 बॉम्ब फायर किए और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड। ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, लेट मी स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल वन। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है, जस्ट मैं नोट डाउन कर लूँ वैल्यूज जो आपको बोल रही थी क्या थी। एन इक्वल्स टू हमारा कितना है 6, राइट, एन इक्वल्स टू 6 है हमारा। आर हमने निकालना था मिनिमम 2 3 4 5 6, ये सारे निकालने हैं, और हमारी सक्सेस कितनी थी 1/5। तो पहले तो फेलियर निकाल लेते हैं बच्चे, 1 में से सक्सेस को माइनस कर दो, फेलियर आ जाएगा आपका, दैट इज़ 4/5, ठीक है। पी दिया था, क्यू निकाल लिया हमने। नाउ अभी इतना लंबा करना है, करो, ठीक है, 2 भी निकालो, 3 भी निकालो, 4 भी निकालो, 5 भी निकालो, 6 भी निकालो। नहीं तो सोचो, जब मैं 6 तक लिख रही हूँ, जब मेरा n 6 है, तो इसका मतलब आंसर क्या क्या आया होगा इसमें, 6 में क्या क्या ऐड होगा, 0 से काउंट करना शुरू कर दो बस, 0 1 2 3 4 5 6, इन सब के आंसर इसके अंदर होंगे। जब n 6 बोलते हैं ना हम, तो इसका मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटी ऐड करके आपका आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। इन सब की प्रोबेबिलिटी ऐड करके आपके आंसर कितना आएगा 1। अगर यहाँ 4 होता तो 0 से शुरू हो जाओ, 0 1 2 3 4, इनकी प्रोबेबिलिटी ऐड करके आंसर कितना आता 1। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि अगर 6 लिखा है तो 0 से लेकर 6 तक की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होगा, 4 लिखा है तो 0 से 4 तक की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होगा। ऐसे ही होता है, जितना n है ना 0 से लेकर वहाँ तक की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है।
अब मुझे आंसर किस किस का चाहिए सॉरी, आंसर मुझे चाहिए 2 3 4 5 6 इनका चाहिए। तो अगर यहाँ से मुझे 2 3 4 5 6 का आंसर निकालना है तो कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 0 और 1। ध्यान से देखो बेटा इसको, 2 3 4 5 6, ठीक है, इनका आंसर मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँ, ये जो 1 है इसमें से ये 1 और 0, ये दोनों चीज़ें ना 0 1, इनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ अगर, तो मेरा वही आंसर आएगा जो ये चाहिए। ठीक है जी, मैं इसको लिख के दिखाती हूँ आपको एक बार नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैं छोटा लिख रही हूँ ताकि एक ही लाइन में मेरा सारा आ जाए। ओके, बिकॉज वैल्यूज ज़्यादा है ना थोड़ी सी। 3 x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 6, ओके, इज इक्वल टू 1। ये है हमारा 0 1 2 3 4 5 6। मुझे किसका आंसर चाहिए, मुझे इतना आंसर चाहिए। तो क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज जो यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं इनको उधर शिफ्ट कर देंगे। ओके, सो मेरा बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, पेपर में ना ये चीज़ लिखनी है बच्चे आपने पहले, देन इट वुड बी गुड इनफ। बट अगर आप कॉन्फिडेंट है आपको, कि कॉन्फिडेंस है पूरा, सॉरी, कि आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, और आपने पहले किया हुआ है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप सीधा आंसर लिखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अदरवाइज इट वुड बी बेटर दैट यू शुड राइट डाउन। सो 1 माइनस, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे माइनस कर देंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। ओके, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रही हूँ, आपने साथ में ही लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। अंडरस्टूड और नॉट? तो आपने ये वाला पार्ट परफॉर्म करना है, ये शॉर्टकट है। ऐसा नहीं है कि आप वैसा करोगे जैसे ऊपर बताया था आपको, r पहले 2 लोगे, फिर 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, 6, आंसर उससे भी सेम आएगा। बट जहाँ तक मेरे को लगता है 5 मार्क्स का आएगा, और 5 में इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, 3 मिनट में ये निकल जाना है। ठीक है, नहीं आता है तो वो करिए, आंसर दोनों से सेम आएगा, दोनों करेक्ट है मेथड। ओके, सो इसमें आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, यानी 1 में से 0 आने की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है और 1 आने की प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको कॉन्फिडेंस है कि कैसे करते हैं। इसके बाद से अब मैं आपको बुक में फाइंड आउट करवाऊंगी n r और p q कैसे निकालना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म दोस बाय योर ओन। ओके, जस्ट 2 to 3 मिनट्स और लगेंगे आपके, बस हम ये 4-5 क्वेश्चन डन करके देन वी विल गो टू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, 5th क्वेश्चन, एक डाई को 5 टाइम्स रोल किया, n इक्वल्स टू 5। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, डाई को फेंको भाई, क्या बनती है सैम्पल स्पेस, 1 2 3 4 5 6, ये बनती है। इसमें से ऑड कितने काउंट करो, 1 3 5, 3 ऑड हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी ऑड नंबर आने की, दैट इज ऑड है। ठीक है, ODD ऑड नंबर, 3/6 यानी कितना हो गया, हाफ। अब ये मत पूछना ये कैसे कैसे आया, ठीक है। ओके, 1 3 5, ये 3 नंबर है ना, तो 3 ऊपर आ गया और नीचे टोटल आता है 6 आ गया, तो 1/2। ओके, सो ये सक्सेस आ गया आपका। p q निकाल लो 1 में से माइनस करके, n अपना कितना था, 5 आ गया था अपना, n कहाँ लिखा है इन्होंने, ये रहा, n 5 आ गया, और नीचे जो दिया होता है ऑप्शंस में वो r होता है, आपको पता ही है। तो सक्सेस 4 आने की, यानी r इक्वल्स टू 4, सॉल्व कर लो फॉर्मूले में डाल के, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट लिखा हो तो वहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से आंसर आएंगे आपके, 4 5, बस 2 तक ही जाना है हमने, तो इन दोनों के आंसर को ऐड कर लेना। ओके, पॉज करके देख लो एक बार, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके जी, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑफ इज एन इन एन इंडस्ट्री इज सच दैट द वर्कर्स हैव 20% चांसेस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट। ओके, 20% चांसेस है उनके सफ़र करने के उस डिजीज से, ऑक्यूपेशनल डिजीज होगा कोई, ठीक है, काम करते हुए होता होगा जो, 20% चांसेस है, 20/100। सो सक्सेस कितना हो गया, 20/100। फेलियर कितना हो गया, 1 में से इसको माइनस कर दो, ठीक है, फेलियर आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 कितने हो गए टोटल, n 6 दिया आपको, 4 और मोर, वही और मोर, एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली सब कुछ r दिया होता है, तो 4 या 4 से ज़्यादा डिजीज से सफ़र हो, यानी r इक्वल्स टू 4 और मोर कहाँ तक जाना है, n तक, यानी 4 5 6। ठीक है, पॉज करके वीडियो क्वेश्चन परफॉर्म कर लो एक बार। ओके, लेट वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल 8। 80% ऑफ टेलीविजन व्यूअर्स वॉच सास भी कभी बहू थी। ओके, तो 80% देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 80/100, ठीक है ना, तो 0.8 लिखना है, लिखो, नहीं तो सीधा भी चल सकता है, 80/100। ठीक है, सक्सेस होगी। फेलियर क्या होगा, 1 में से इसको माइनस कर दो, 20/100 आ जाएगा, 0.2। अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट जा रही हूँ तो स्लो कर लेना वीडियो को,
ठीक है वेरी सिंपल। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, ये क्या दिया है, आर, बोला था ना, एटलीस्ट, एट मोस्ट, एग्जैक्टली, सो दैट इज आर। आर दिया है 80%, 80%, अब ये तो समझना पड़ेगा पहले आर क्या है, ठीक है। आर किसका 80% होगा, आर होगा एन का 80%, ये चीज़ याद रखनी है। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना मेंशन हो ना, तो आर किसका परसेंटेज लगता है, एन का। एन के बारे में क्या बोल रहा है, सैंपल ऑफ 5 वॉच दिस प्रोग्राम, 5 लोगों के बारे में बात की है, सैंपल 5 का है, तो 5 का 80% कितना बनेगा, 4, 5 का 80% 4, तो 4 आ रहा है आपका, एटलीस्ट 4 है, मतलब 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो कहाँ तक जाएंगे, एन तक जाएंगे, तो 4 और 5 दोनों आंसर हो गए, ठीक है ना बच्चे। एटलीस्ट मतलब आर दिया है, 80% लिखा है, अब किसका लेते हैं, एन का लेते हैं हमेशा, तो एन कितना है क्वेश्चन में, 5, तो 5 का 80% यानी 4, तो 4,5, तो ये दोनों के आंसर आपको निकाल के यहाँ पे सॉल्व कर लेने हैं, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, जैसे वो पीछे बॉम्ब वाला क्वेश्चन बताया ना आपको, वो इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। अभी ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9th क्वेश्चन, ये शिप वाला, ये पेपर में आ सकता है, सो इसको भी अच्छे से करना है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर से ही हैं, ठीक है। ये लो 5 स्टार बना देते हैं। 8 ships आउट ऑफ 10 अराइव सेफली, 10 में से 8 शिप सेफली अराइव कर जाती हैं, सक्सेस उठाओ, 8/10 है ना। फेलियर कितना होगा, 1 माइनस 8/10, तो 8/10 को इन्होंने कैंसिल किया, 4/5, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्यू 1/5, सीधा वो भी लिख सकते हैं, 8/10 2/10, अंडरस्टूड और नॉट। ध्यान से रिपीट कर रही हूँ एक बार, 8 शिप्स में जो 10 में से अराइव हो जाती हैं सेफली, तो 10 में से 8 शिप अगर सेफली अराइव हो जाती हैं, तो सेफली अराइव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 8/10, और ना होने की कितनी बची, 2 ही तो बची ना, 2/10, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट, यानी क्या दिया है, आर दिया है, एटलीस्ट 1, यानी आर इक्वल्स टू 1 है, 1 है तो 1 से एटलीस्ट है ना, तो बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। अराइव सेफली आउट ऑफ 5 शिप्स, तो 5 में से, तो एन आपका 5 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान से वही देखनी है आपने, वही वाला पीछे वाला क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, गिव मी वन सेकंड। जब एन 5 लिख रहा है वो, ठीक है ना, एक मिनट, जब एन उसने 5 लिखा और आगे लिखा आर इक्वल्स टू एटलीस्ट 1, है ना। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक, तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 मिनट, 1 ही था ना, हाँ 1 ही था, ओके। तो इसका मतलब आर की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, इतना लंबा आंसर हो गया। तो अब ध्यान से देखो, जब मैं एन 5 बोल रही हूँ, तो 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है 0 1 2 3 4 5, इन सब का आंसर ऐड करके क्या आना चाहिए, 1, कॉमन सेंस है ना, इन सब का आंसर ऐड करके 1 आना चाहिए। अब मुझे किसका आंसर चाहिए, ये ना तब मेथड लगाया करो जब ना आर आपका लंबा है, आर में 4 या 4 से ज़्यादा वैल्यूज आ जाए ना, आर के अंदर 4 या 4 से ज़्यादा, देन इट वुड बी बेटर, ठीक है। बट ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग पे डिपेंड करता है कि कब अप्लाई करोगे। सो मुझे ये आंसर चाहिए, ये वाला, ये 4 वैल्यूज चाहिए आपको, तो ये 0 उधर शिफ्ट कर दो, तो मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू, ये इसके आगे वाला पार्ट यहाँ लिख रही हूँ, 1, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से कौन सा माइनस करेंगे, 0, ओके, x इक्वल्स टू 0, देन यू विल गेट योर आंसर, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसमें हम टेबल फॉर्म कर लेंगे आप इसकी, बट आप ट्राई करना 1-2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखना इसके, अगर कोई इशू आता है देन मेरे को मेल कर देना आप लोग, ओके, बाय बाय।